اس سے علم کو چھین لیا ہے. اور ایسے شخص کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو وہ لوگ کی بات ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سب مطلب حقیقت اس میں نہیں ہے، بیکار ہے، فضول بات ان کے لیے کہی گئی. اب ہم آتے ہیں ان کے طرف جنہوں نے موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھا، یقین رکھا، جنہیں پتا ہے کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ سوال جواب ہونا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ ویسے ہی جو ہے کہ حالات پیش کی جائے گی جس طریقے سے ہم دنیا گزارے ہیں. اس کے بعد قیامت ہوں گی، قیامت میں ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت میں ہم جو ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال اور اعمال کی کتاب کو لے کر کے اس حالت میں کھڑے ہوں گے جس طریقے کا ہم نے دنیا گزاری ہے نا. اور اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہونا ہے، اور ہمارا فیصلہ ہونے کے بعد جنت اور جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایک اللہ پہ یقین کیا، جنہوں نے موت پر یقین کیا، جنہوں نے قیامت پر یقین کیا، جنہوں نے جنت اور جہنم پر یقین کیا، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر یقین کیا، جنہوں نے اللہ کے کلام پر یقین کیا، جنہوں نے اللہ کے کلام قرآن پاک پر یقین کیا، اور تمام انبیاء کرام جو پہلے آ چکے ان سب پر یقین کیا، وہ جو ہیں حقیقتاً وہ ہے ایمان والے، اور وہ ہے راہ پہ. اب ہم آ گئے اپنے اس آیت پر جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت. یعنی کہ اب ایسے ایمان والوں کے لیے ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے یقین کیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایسے مومنوں سے، ایسے مسلمانوں سے، ایسے حق پہ چلنے والوں سے، ایسے سچوں سے، اور ایسے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھے. اللہ کو اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم رکھیے، اور نماز قائم رکھنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک میں تقریباً 80 مرتبہ جو ہے کہ دہرایا ہے، تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. تو بار بار کسی ایک چیز کو بتائی جائے، یہاں تک کہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ایک بار بتائی جائے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے، دوسری بار بتائی جائے تو سختی سے سمجھ میں آنا چاہیے، تیسری بار بتائی جائے تو سمجھ میں آ ہی جانا چاہیے. لیکن اللہ وہ مہربان، وہ رحمان، اپنے کلام میں 3 سے بھی کہیں زیادہ 80 بار تقریباً کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. اب قائم کرو کہنا کہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ پڑھو. پرٹیکولرلی جب قائم کی لفظ آتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے پڑھنا، ادا کر دینا، ادا کرنا، لیکن اللہ کہتا ہے قائم کرو. قائم کا معنی یہ ہوا کہ اس کو جو ہے کہ تم کو کنٹینیویشن میں جو ہے کہ بنائے رکھنا ہے، نہ کہ صرف تم بلکہ تمہاری تمام نسلوں کو بھی بنائے رکھنا، اور تمہیں اپنے آخری دم تک، اپنی آخری سانس تک اس کو جو ہے یہ بنائے رکھنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو مینٹین رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا دوسری بار نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ آج پڑھا کل نہیں پڑھا، قائم کرنا ہے. اللہ نے اگر 5 وقت حکم دے دیا، نصیحت کر دیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ہم جس بات سے شروع کیے تھے ہم وہیں پر آ گئے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہمارا پروردگار عالم اس کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہے کہ وہ ہم کو گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں نصیحت دے رہا ہے ہمارے اچھے کے لیے، ہمارے حق کے لیے کہ تم نے نماز قائم کرو. اللہ ہم اپنے آپ پر ذرا غور کریں. ہم اپنے اولادوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام برا ہے، یہ کام مت کرو. ہم اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز پڑھو، تمہارے حق کے لیے بہتر ہے. ہم اپنے دوستوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو فلاں راستے پہ مت جانا، وہاں پر جو ہے کہ بہت برا چیز ہے. ہم اپنے اہل و عیال کو بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس کے لیے فکر ہے، ہم اس کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں. تو دیکھیے یہ ہے اللہ کی رحمت، یہی ہے میرا رحمان. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نصیحت دے رہا ہے، ہمارا گارجین، جسٹ لائک گارجین بن کر کے. ایک بتا رہا ہوں میں، ہے نا، ادروائز تو رب العالمین ہے، مالک کائنات ہے، رب ہے، ہم اس کے بندے، ہم اس کے غلام ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، لیکن ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہم کو بتا رہا ہے، ہم کو نصیحت دے رہا ہے. ہم کو نصیحت دینے والا ہے کوئی آج؟
अगर नसीहत देने वाला अगर ना रहे, हमारे ऊपर से गार्जियन हट जाए, तो कैसे हम अनाथ हो जाते हैं। तो हम मुसलमान को नसीहत देने के लिए हमारा अल्लाह फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। अगर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज उतार दी तो ये 5 वक्त अपने अपने वक्तों से पढ़ो, और खुद भी पढ़ो और दूसरों से भी कहो पढ़ने के लिए, अपने नस्लों से भी कहो, ताकि तुम्हारी पूरी नस्ल भी पढ़े और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी पढ़ें और तुम्हारे घर के लोग भी पढ़ें और तुम भी पढ़ो। कायम करो, खुद अकेले बैठ के मत पढ़ लो, खुद मस्जिद में जाकर करके चुप करके बैठ के न पढ़ लो कि हमें ढेर सारी देर की शब्द सवाब मिल जाएंगी, हमें ढेर सारा नेकी मिल जाएगा, मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट इस्लाम में नहीं है। बेस्ट वो है जो खुद भी सही रास्ते पे चले और दूसरों को भी नसीहत करे, दूसरों को भी सही रास्ते पे चलने की तौफीक देता रहे, रास्ता दिखाता रहे, बताता रहे, तौहीद की दावत देता रहे वगैरह। बेस्ट हम में से वो है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, इस्लाम में ये नहीं है कि तुम उठाओ मसल्ला और चले जाओ जंगल में सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके ना। अल्लाह कहता है कि नहीं, तुमको इसी दुनिया में रहना है, तमाम हुकूक की अदायगी करनी है, तमाम फर्ज को अदा करना है, और ऐसे हालात में रहकर करके जो है ना कि तुमको अपने आखिरत की तैयारी करनी है। वरना क्या तनाव में अपना बैठे हुए, ना किसी से कुछ मतलब है, कुछ नहीं, अपने से सिर्फ मतलब है। आज इस्लाम की दावत, इस्लाम की तौहीद के लिए हजारों मुसलमान जो है कि घर से निकलते हैं दीन की राह के लिए, लोगों को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि यही है इस्लाम हमारा। सिर्फ अपने तय तक रख लो नहीं, तुम्हें जो है, तुम्हें भी पढ़ना है, तुम्हें भी उन चीजों को फॉलो करना है और दूसरों को भी गाइड करना है, दूसरों को भी गाइड करना है। यह है इस्लाम। ये नहीं कि मैंने तुम्हें इतनी दौलत दी तो तुम सिर्फ खुद में खा पियो, मस्ती करो, ऐशो आराम से जी लो। नहीं, मैंने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें दौलत दी ही इसीलिए है कि तुम जो है औरों को भी तुम दो। मैंने तुम्हें दिया, ये ना समझो कि ये तुम्हारी खुद की अकेली की काबिलियत है, ये ना समझो कि तुम बहुत अच्छे हो, ये ना समझो कि तुम बहुत काबिल हो। अगर मैंने तुम्हें दौलत दी तो सिर्फ इसलिए दी कि मैंने तुम्हें चुना, अब तुम्हारे ऊपर ड्यूटी मैंने बांधी है कि ये तुम रखो और इसको रख करके तुम अपने ऊपर भी खर्च करो, लेकिन सुनो, इसमें से औरों को भी दो, औरों को भी इसमें औरों का भी हक है, औरों का भी ख्याल रखो। और सुनो, छिपके देना, बहुत ज्यादा ऐलान करके ना देना, हो सकता है कि उसको तकलीफ पहुंच जाए, हो सकता है कि वो बड़ा ही गैरत वाला हो, तुम्हारे सामने ना मुंह खोल रहा हो और उसे ना मुंह खोल रहा हो, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसे ऐसे दो कि उसका गैरत को तकलीफ भी ना हो। लेकिन सुनो, ऐसा दो कि तुम्हारे एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ तक को भी खबर ना हो। मैंने तुम्हें दिया तो मेरा शुक्र अदा करो, और अपने ऊपर तो ठीक है खर्च करो, लेकिन तुम अकेले अपने ऊपर नहीं खर्च करो, सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए नहीं दिया है ये। आज अगर किसी के पास बहुत दौलत हो जाती है तो वो ये सोचने लगता है कि ये मेरी काबिलियत है, मैंने अपने कुव्वत से और अपने जो है इल्म से और अपने ओहदे से और अपने से मेहनत से हमने ये चीज किया। वरना देखो, मेहनत करने वाले इस दुनिया में तुम जाओ ना, देखो ना, मेहनत करने वाले तो ऐसे ऐसे मेहनत कर रहे हैं जिसका तुम 10वां हिस्सा भी मेहनत नहीं किए हो। कमाने वाले ऐसे ऐसे मुश्किलात को झेल के कमा रहे हैं जिसका तुम जो है कि 10वां हिस्सा भी जो है कि तुमने इतना मुश्किल नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पास दौलत है। तो क्यों दौलत है? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बेहतर हो सब में। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि भाई तुमने इल्म के लिए बहुत मेहनत की, तुमने अपने आमदनी के लिए बहुत मशक्कत की, तुमने अपने बिजनेस के लिए बहुत दौड़ा धूपा, ठीक है, वाज़ेह, लेकिन उसमें कामयाबी देने वाला कौन है? बेशक वो अल्लाह है, बेशक वो अल्लाह। वरना क्या था? किसी को तुम देखोगे कि बहुत मेहनत कर रहा, मगर ऐन उसको जब आमदनी का सिलसिला शुरू हुआ, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लग गया कि उस आमदनी से उसको फायदा ना मिला। बहुत ऐसे लोग को देखेंगे, बहुत मेहनत किया मगर वक्त पूरा हो गया, अल्लाह ने उठा लिया। बहुत से ऐसे लोग को देखेंगे जो बहुत मेहनत किया लेकिन फिर कुछ उसके साथ ऐसा गुजर गया कि उसका फायदा ना हुआ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम होता है, अल्लाह का एहसान होता है कि तुमने जो किया तो अल्लाह ने उसमें तुम्हें शफा दे दी और अल्लाह ने तुम्हें उसमें फायदा पहुंचा दिया और तुमको उस लायक बना दिया कि तुम्हारे पास उसने कामयाबी और बुलंदी और दौलत अता फरमा दी। तो अव्वल तो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब दूसरा ये अल्लाह ने कह दिया कि देखो मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसमें से औरों को भी दो, जैसा कि कहा गया है ना, कि कोशिश करो कि पोशीदा दो,
किसी की गैरत को मत तकलीफ पहुंचाना। ऐसा पोशीदा खर्च करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ये भी कहता है कि जाहिर खर्च करो। एक तरफ कहा अल्लाह ने कि पोशीदा खर्च करो, दूसरी तरफ कह रहा है कि जाहिर खर्च करो। अब ये तो हमने सोचना है ना कि कहां पे हमने जाहिर करना है, कहां पे हमने पोशीदा करना है। अब जाहिर का मानी ये होगा कि ऐसी जगह जाहिर करो जिस जगह से तुमको देख करके और इंस्पायर्ड हो और लोगों को एहसास हो और लोग जो हैं ये उस चीज में खर्च करें, है ना। अगर हम कुछ ऐसी जगह पर खर्च कर रहे हैं कि हमको देख करके अगला बंदा जो वो भी साहब हैसियत है वो भी बढ़ चढ़ करके उसमें खर्च करेगा, ठीक है ना। तो जहां पर हमको जाहिरी देना है वहां पे जाहिरी दो, लेकिन वहां पर भी आपके जाहिरी के पीछे आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप ये जाहिर इसलिए कर रहे हैं कि देखो मैं दे रहा हूं ताकि मुझे देते हुए देखे और लोग भी खुशगवारी से दें। बहुत जगह ऐसी जहां पर हमको जाहिर करना है, नहीं तो फिर हमको पोशीदा ही देना है। अब जैसे हमने कुछ जगहों पे देखा कि मस्जिदों में चंदा देते हैं, बाकायदा लिस्ट लिखाती है और लिस्ट पर नाम लिख के पिलर पे चिपका दिया जाता है कि फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, फलाने ने। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हम अगर किसी को सदका दे रहे हैं, हम अगर किसी को ज़कात दे रहे हैं, हम अगर किसी को क्या कहते हैं कि फितरा दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि दोस्तों की आप मदद कीजिए, मगर इसका ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पर बात हमारे दीन का है, कहीं पर बात ऐसी जगह जैसे कि मस्जिद बन रही है, तामीर हुई, उसमें आप बढ़ चढ़ के खोल के दीजिए ताकि आपको देख करके और लोग भी दें। कहीं मदरसा बन रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जहां पर आपको देख करके और लोग भी देंगे, वहां पे जाहिर कीजिए। लेकिन उसके पीछे ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम जो दिए हैं वो उसका जो है कि हमारा लोग समझे कि देखो उन्होंने इतना दिया, मतलब कि हमारे मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, जो है कि जताना नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि खर्च करो, और खर्च करने से पहले अल्लाह ने नमाज पे बहुत ज्यादा जो है कि जोर दिया है कि नमाज को कायम करो, नमाज कायम करो और जो कुछ भी हमने दिया है उसमें से खर्च करो। अब खर्च करने में अल्लाह ने सबसे फर्ज बना दिया ज़कात। ज़कात फर्ज है, तुमको देना है, तुम साहब हैसियत हो, तुमको देना है, तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है। नहीं दोगे तो तुम यानी कि मेरे हुक्म के खिलाफ किए, और हुक्म का खिलाफ, अल्लाह का हुक्म का खिलाफ का क्या माने हुआ, बहुत बड़ा माने हो गया, अल्लाह की बात को ना मानना। हाँ, ये और बात है कि भाई हम साहब हैसियत नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम ज़कात दे पाए, तो अल्लाह ने उसके लिए तो खुल के कह दिया कि ठीक है भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे पास ये कंडीशन है, ये चीजें हैं, तो आप तुमको देना फर्ज है, नहीं है कोई बात नहीं। हज के तुम लायक हज करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर है लायक तो करो, अब तुम्हारे पास फर्ज है ना। तो दोस्तों, इस आयत में हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह ने कहा कि मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए, है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, और कुरान के जरिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कह रहे हैं कि नमाज को कायम करें, जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें ना खरीद और फरोख्त होगी, ना दोस्ती और ना मोहब्बत, यानी कि वो दिन आखिरत आ जाए। मौत के बाद फिर जब हम जहां उठाए जाएं वहां पर क्या होगा, हम अपने लोगों को तो देखेंगे, हम अपने लोगों को देखेंगे, हम जिनके बीच में रह रहे हैं उनको देखेंगे, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनको देखेंगे, जिनसे हमारा दोस्ती और याराना है उनको देखेंगे, जिनसे हमारा बिजनेस चल रहा है उनको देखेंगे, जिनसे हमारी खरीद फरोख्त हो रही है उनको देखेंगे। अब वहां पर क़यामत के रोज वो हमारे किसी काम ना आवेंगे, वो हमारे किसी काम भी ना आवेंगे। न बाप बेटा का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ अपनी औलाद का होगा, न औलाद अपनी माँ का होगा, न शौहर अपनी बीवी का होगा, न बीवी अपनी शौहर की होगी। तो वो दिन तो ऐसा दिन होगा कि वहां पर जिनका ईमान, एक ईमान भी अगर एक नेकी भी, माफ कीजिएगा, एक नेकी भी अगर कम पड़ रही है तो वो उस एक नेकी के लिए जो है कि अपने तमाम अजीज व अकारिब के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एक नेकी दे दो, बस देखो मैं तुम्हारा फलाना था, देखो मैंने तुम्हारे साथ ये एहसानात किए, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर ये किया, देखो बस एक नेकी दे दो। एक नेकी दे दोगे ना तो जो है कि मैं जहन्नुम से बच जाऊंगा, अल्लाह मुझे माफ, एक नेकी। और ऐसे वक्त में आपको एक नेकी देने वाला कोई नहीं होगा,
نہ ہماری اولاد ہوں گی، نہ ہمارے والدین ہوں گے، نہ بھائی بہن ہوں گے، نہ بیویاں، نہ شوہر ہوں گا، کوئی نہیں. ایک نیکی دے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. وہاں پہ دوستی، محبت، تمام چیزیں جو ہے کہ سب کے سب دھری کی دھری رہ